There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. Good morning, my dear students. Just now, your half-yearly assessments are over and you all have really tried well and also performed well in your assessments. Whatever the mistakes you have committed, learn from those mistakes and try not to do these again. Let us pray to God, children, that He will give us more wisdom and intelligence so that we can overcome our problems and mistakes. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Yes, children, today we are going to read lesson number 9 of your reader book, Proud Frog. And the writer of the chapter is Sangam Sharma. Who has written the chapter? Sangam Sharma is the writer. Children, how do you feel when you get the highest marks in some test? Do you feel happy or you feel proud और यू फील नथिंग? बेटा, आपको खुशी होती है या आपको बहुत घमंड होता है कि आहा इतने हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसी के भी नहीं आए, सिर्फ मेरे आए हैं, या फील नथिंग, कुछ भी महसूस नहीं होता है? यस बेटा, वी शुड फील हैप्पी, हमें खुश होना चाहिए कि हमारी मेहनत का हमें रिवॉर्ड मिला है, लेकिन वी शुड नेवर फील प्राउड, घमंड नहीं करना चाहिए. राइट चिल्ड्रन? While checking your assessments, I found that many of you are still not aware where to use capital letters. So here are the rules to where to use capital letters. Whenever we begin a new sentence, जब भी हम कोई नया sentence शुरू करते हैं, we begin it with a capital letter. First letter of proper noun, week, month, etc. Which are proper nouns that are the specific name of a person, place, animal or a thing always begin with a capital letter. Similarly, week, month, January, February, weekdays, Sunday, Monday, they all begin with capital letters. Headings. When we write headings, we use capital letters. Like I have written this heading, use of capital letters. This is the heading, so I am using capital letters. Whenever I is mentioned as standard pronoun, यानी बेटा I एक ऐसा personal pronoun है जो speaker के लिए यूज होता है. तो जब speaker हम यूज करते हैं उसको सेंटेंस में, तो there we write I. जब हम as a
children, what new words and their meaning we are going to learn in the chapter. The first word is edge. E-D-G-E. Edge means outside limit of an area. बेटा किसी चीज़ का किनारा, बाहरी किनारा, उसको हम edge कहते हैं. The second word is hoofs. H-O-O-F-S. Hoofs means outer covering of feet of animals. Animals बेटा जैसे कि आपने काउ, बफलो, हॉर्स, इनके हूफ्स होते हैं, इनके फिंगर्स नहीं होते हैं, टोज नहीं होते हैं, इनके हूफ होते हैं, वो पूरा कवर्ड होते हैं सो दैट उनके पाँव जो हैं जब भागते हैं एनिमल्स ये तो खराब ना हो. तो दे हैव हूफ्स. द थर्ड वर्ड इज chorus. C-H-O-R-U-S. Chorus means to speak or sing together. इकट्ठे गाना या इकट्ठे कुछ बोलना. That is called chorus. The fourth word is trampled. T-R-A-M-P-L-E-D. Trampled means stepped heavily. किसी चीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरह से कुछ पाँव रख देना. That is called trampled, यानी कुचल देना. The last word is swallow. S-W-A-L-L-O-W. Swallow means gulp down, यानी कुछ निगलना. जब ऐसे कई बार ऐसा होता है बेटा, हम बहुत बड़ी बाइट ले लेते हैं तो वी आर अनएबल टू स्वेलो. तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा वी टेक वाटर और मिल्क टू gulp it down. That is called swallow. There was a small pond near a jungle. तो बेटा एक बार की बात है, जंगल में एक पॉन्ड था, एक छोटा सा तालाब था. Many little frogs played there joyfully, jumping in and out of the pond. तो उस तालाब के किनारे बहुत सारे फ्रॉग्स जो हैं वो जॉयफुली यानी हंसते खेलते जंपिंग करते हुए कभी पॉन्ड के अंदर जाते थे, कभी बाहर आते थे, तो वो लोग वहाँ पर खेलते थे. One day they were playing among the flowers near the edge of the bridge. ब्रिज क्या होता है बेटा? पुल. तो वहाँ पर जो पॉन्ड के पास एक ब्रिज था, वहाँ फ्लावर्स थे, वहाँ कुछ फ्रॉग्स वहाँ पर खेल रहे थे उस एज पर, ब्रिज के एज पर, यानी ब्रिज के किनारे पर. दे वर enjoying themselves when suddenly 2 cows came there to drink water. वो अपने आपस में बहुत इंजॉय कर रहे थे फ्रॉग्स. तभी अचानक वहाँ पर 2 काउज जो थी वहाँ पर पानी पीने के लिए आ गई. बेटा जंगल में जो एनिमल्स होते हैं तो वहाँ की जो रिवर होती है या पॉन्ड होते हैं, सब लोग वहीं आएंगे ना पानी पीने. देयर बिग हूफ्स केम वेरी क्लोज टू रॉय, वन ऑफ द फ्रॉग्स. तो उनमें से एक फ्रॉग का क्या नाम था? रॉय. तो एक काउ जो थी उसके बड़े बड़े हूफ्स उस रॉय जो फ्रॉग था उसके पास बहुत क्लोज आ गए. हे गो अवे, द फ्रॉग शाउटेड इन कोरस टू शू द काउज अवे. तो सभी फ्रॉग्स, अब आप बैठे हों और आसपास कोई बहुत बड़ी चीज़ आ जाए या कोई एनिमल ही आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसको हटाएंगे वहाँ से. तो वो फ्रॉग्स भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे गो अवे, तो भाग जाओ, यहाँ से जाओ. तो कोरस यानी इकट्ठे सभी फ्रॉग्स वहाँ जोर जोर से काऊ की तरफ चिल्लाने लगे. बट द काउज वॉकड अराउंड एंड वन ऑफ देम इवन ट्रैम्पल्ड अ टाइनी लिटिल फ्रॉग. लेकिन जो काउज थी उनको नहीं सुनाई दे रहा था कि फ्रॉग्स क्या कह रही है, और एक काऊ ने अपना जो हूफ था एक टाइनी लिटिल फ्रॉग, छोटे से फ्रॉग के ऊपर अपना हूफ रख दिया. अब काऊ तो बहुत बड़ी होती है, फ्रॉग छोटा होता है, तो वो जो फ्रॉग था वो हूफ के नीचे ट्रैम्पल्ड यानी कुचला गया. बेटा here see, there, it's a beginning of the sentence, so we have written T capital, many. M again is the beginning of the sentence, so we have written M capital. See, 1,
देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, दैट इज वन सेंटेंस हैज एंडेड एंड अदर वन हैज स्टार्टेड. सो वन डे, O capital. Now see, Roy is the name of a particular frog, तो R capital. Again he, exclamation mark है तो G capital. Again the beginning of the new sentence, but का B capital. So you will also take care of the capital letters. A trembling little frog who saw this incident hoped to see to his big brother. तो बेटा ट्रेमलिंग यानी डर से कांपना. तो बाकी जो लिटिल फ्रॉग्स है वो ये देखकर डर से कांपने लगे. देखिए दिस लिटिल टाइनी फ्रॉग हैज़ बीन ट्रैम्पल्ड बाय द हूफ्स. ये देखिए बेटा, दीज आर द हूफ्स ऑफ द काउ. देखिए यहाँ पे टोज नहीं है, फिंगर्स नहीं है, राइट. सो दीज आर हूफ्स एंड दिस टाइनी लिटिल फ्रॉग इज बीइंग ट्रैम्पल्ड बाय द काउज हूफ. तो ट्रेमलिंग यानी डर से कांपना. अब जो बाकी फ्रॉग्स थे वो ये देखकर देखिए डर से कांपने लगे, वो इधर उधर भाग रहे हैं. एंड ये इंसिडेंट देखकर वो हॉपिंग क्या होते हैं, कूद कर चलना. तो हॉप टू हिज बिग ब्रदर. ऐसे ही होते हैं बेटा, जब हम लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम अपने बड़ों के पास जाते हैं. हिज ब्रदर वॉज अ प्राउड फ्रॉगी. तो जो उसका बड़ा भाई था वो एक प्राउड यानी घमंडी फ्रॉगी था. What is the matter? His brother asked. तो उसके ब्रदर ने पूछा, हाँ जी क्या बात हो गई, क्यों इतना डर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो. The little frog told the terrifying story of the cow trampling a frog. अब वो जो लिटिल फ्रॉग था वो इतना डरा हुआ था कि उसने वो बड़ी भयानक से बड़ी भयानक सी स्टोरी कि कैसे काउज आई और उन्होंने हम ऐसे एक लिटिल टाइनी फ्रॉग को ट्रैम्पल कर दिया, कुचल दिया. वो पूरी स्टोरी सुनाई. देखिए बेटा, फ्रॉग्स कितने छोटे हैं एंड द काउ इज सो बिग. हाउ मेनी आर दे, हिज एंग्री ब्रदर आस्क्ड. तो वो जो गुस्से में आ गया भाई कि ऐसे कैसे कि काउ हमारे फ्रॉग्स को ट्रैम्पल कर दे. और उसने पूछा कितनी है वो, हाउ मेनी थे आर दे. ही रिप्लाइड दे आर 2 ऑफ देम. तो जो छोटा भाई था उसने आंसर किया कि वो कितनी काउज है, 2 काउज है. डोंट वरी, आई विल गो एंड ड्राइव देम आउट, ही सेड. तो अब वो जो प्राउड फ्रॉगी था, बड़ा भाई था, उसने कहा डरो नहीं, मैं उन दोनों को ड्राइव देम आउट यानी उन दोनों को भगा दूंगा. बट ब्रदर फ्रॉगी यू कांट, सेड द लिटिल फ्रॉग. तो लिटिल फ्रॉग ने कहा लेकिन ब्रदर फ्रॉगी आप ऐसा नहीं कर पाओगे. वाई आस्क्ड फ्रॉगी. फ्रॉगी ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर पाऊंगा. One of them is very very big, said the little frog. तो लिटिल फ्रॉग ने कहा उनमें से एक तो बहुत बड़ी है और हम इतने छोटे से हैं, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे. Nonsense. No matter how big she is, I can make myself bigger. तो फ्रॉग ने कहा बेकार की बात मत करो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो मैं उससे अपने आप को बड़ा कर लूँगा और फिर उसको भगा दूँगा. बेटा लुक हियर, ही H कैपिटल. देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स है यानी यहाँ पर किसी के कहे हुए वर्ड्स हम कोट कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. अगेन इट्स अ बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो, सो डोंट D कैपिटल. आई विल. बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि आई जहाँ पर अलोन खड़ा होता है तो हम आई को कैपिटल करते हैं. बट अगेन इट्स अ बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. वाई. देखिए बेटा वाई W कैपिटल. वन ऑफ देम अगेन बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस O कैपिटल. नॉनसेंस अगेन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. मोर ओवर बेटा ये एक इंटरजेक्शन भी है तो N कैपिटल. एंड सी आफ्टर एक्सक्लामेटरी मार्क you always begin a new sentence. So no ka N capital. Children, we will read rest of the chapter in the next video. So children, let us learn some new vocabulary words. Let us learn
some new words starting with letter N. The first word is nibble. N-I-B-B-L-E, nibble, यानी कुतरना या छोटी-छोटी बाइट्स लेना. Second word is nice. N-I-C-E, nice यानी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, अच्छा. The third word is never. N-E-V-E-R, never यानी कभी नहीं. The fourth word is neat. N-E-A-T, neat यानी साफ सुथरा. Number 5 is narrow. N-A-R-R-O-W, narrow means which is not wide, चौड़ा नहीं है, थोड़ा भीड़ा है. That is called narrow. So beta, you will write these words in your English notebook. Children, you see a boy trying to hit a stray dog with a stick. What will you do? बेटा स्ट्रे डॉग क्या होते हैं? जो आपके कॉलोनी में गली में घूमते हैं डॉग्स, उनको स्ट्रे डॉग बोलते हैं, जो किसी के पेट नहीं होते. फर्स्ट ऑप्शन इज जॉइन द बॉय टू चेज द डॉग विद हिम एंड हैव फन. तो आप उस बॉय के साथ लग जाओगे और आप उस डॉग को चेज यानी पीछा करोगे और उसको परेशान करोगे और मज़ा करोगे. बी ऑप्शन इज मेक द बॉय अंडरस्टैंड दैट ही शुड नॉट हर्ट एनी एनिमल. तो आप ये उस बॉय को बताओगे कि हमें ऐसे किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए. तो व्हाट ऑप्शन विल यू चूज? ऑफ कोर्स वी विल चूज द बी ऑप्शन, दैट वी विल मेक हिम अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट हर्ट एनी एनिमल. Children, your homework is that you will read lesson 9 of your reader book and write vocabulary words, new words along with their meanings in your English notebook. So children, stay home, stay healthy and always keep learning. Bye.